इंदौर विकास प्राधिकरण ने बनाया एयरपोर्ट की तर्ज पर एयर कूल्ड ISBT। आईडीए ने 101 करोड़ रुपए की लागत से किया ISBT कुमेड़ी का निर्माण। दिसंबर तक हो जाएगा काम पूरा, जनवरी से संचालन का अनुमान। आईडीए CEO RP अहिरवार ने बताया, क्यों है खास ISBT कुमेड़ी। प्रतिदिन 1200 बसों का संचालन हो सकेगा। 80,000 यात्रियों के सफर करने का अनुमान। एयरपोर्ट और मेट्रो रेल के साथ सीधे कनेक्टिविटी रहेगी। जनता की सुविधा को ध्यान में रख 80 सिटी बस के लिए भी जगह रखी गई है। एयरपोर्ट की तर्ज पर शॉप भी होंगी। CEO RP अहिरवार ने बताया, संचालन के लिए 80 से 90 लाख प्रतिमाह खर्च आएगा। संचालन के लिए जल्द ही देश के किसी बड़े ISBT की एजेंसी हायर की जाएगी। Indore, the commercial capital of Madhya Pradesh, is one of the fastest growing cities of India. It is a major tourism and education hub with more than 2 lakh passengers visiting every day. In this cleanest city of the country, a state-of-the-art interstate bus terminal is being constructed by the Indore Development Authority. Strategically located on the Super Corridor near MR10 bridge, ISBT is taking its shape on 4.5 hectares of land. The bus terminal is located about 6 kilometers from the railway station and 12 kilometers from the airport. The ISBT is being developed with ultra-modern facilities and amenities, similar to airports, based on the green building concepts. This terminal will have water harvesting and recycling, solar panels and charging facility for electric buses. Approximately 1,500 buses will ply between Indore and other cities of Madhya Pradesh and different states of India. Considering the convenient movement of more than 80,000 passengers every day, 10 arrival and 27 departure bays have been planned. For better traffic management, movement of intercity buses, city buses and private vehicles has been segregated. The state-of-the-art ISBT terminal building will have facilities like ample parking in basement and on-site, ticket counters, police control room, medical facilities, cloak room, tours and travels offices, food court, restaurants, air-cooled waiting lounge and VIP waiting rooms. To decongest the terminal and provide smooth transit, dedicated parking space is provided for taxi, auto rickshaw, four-wheelers, two-wheelers and buses. The ISBT and metro station will be seamlessly connected under multi-modal transit system. Foot overbridge will directly connect the passengers from ISBT to the metro station. ISBT will be constructed at an estimated cost of 60 crores. This project will pave the way for development of not only the city but also the peri-urban areas. ये कुमरेडी में जो ISBT बन रहा है, ये लगभग 15 एकड़ क्षेत्रफल पर बन रहा है और इसकी लागत राशि 101 करोड़ रुपए के आसपास है। ये अपने आप में पूर्णतः वातानुकूलित जो है बस स्टैंड होगा। जैसा आपने देखा, ये हम लोग जहाँ खड़े हैं, ये प्रतीक्षालय है, टिकट विंडो सिस्टम है यहाँ, और यहाँ यात्रियों से पूछताछ केंद्र है, और यहाँ मेडिकल सेंटर रहेगा, पुलिस कंट्रोल रूम होगा, हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होगा, साथ ही साथ 33 जो है बस ऑपरेटर्स के ऑफिस होंगे। ये जो पूरा एरिया है ये हमारा एयर कूल्ड है। साथ ही जैसा एयरपोर्ट पर हम देखते हैं जब कहीं जाते हैं कि वहाँ शॉप्स होती हैं, लोग आते हैं, जैसे टिकट लिया, अब उनको बस में आधा घंटे का टाइम है, कुछ खाना है पीना है, तो उसके लिए 16 यहाँ रेस्टोरेंट हैं। साथ ही साथ जो 37 यहाँ शॉप्स हैं, दुकानें हैं, तो वो बनाई गई हैं। और ये पूरा एरिया एयर कूल्ड है। जब यहाँ से जब उनका बस का टाइम हो जाता है तो फिर यहाँ से 43 बस वे बने हुए हैं जहाँ से वो अपने गंतव्य की ओर जा सकते हैं। यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश का जो जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र है, ग्वालियर एरिया है, सागर है, दमोह है, रीवा है, इस एरिया की पूरी बसें जो है, भोपाल है, वहाँ की बसें यहाँ से मिलेंगी। और ये कंपोजिट मॉडल टाइप का है, जिस तरीके का कि यात्री यदि आते हैं और यदि उनको 2-3 दिन के लिए अपना वाहन पार्क करना है तो यहाँ अंडरग्राउंड 350 व्हीकल्स का 4 व्हीलर का पार्किंग है। बाहर जो है टैक्सी, ऑटो रिक्शा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स या अन्य कोई 2 व्हीलर हैं, उनकी पार्किंग के लिए लगभग 650 से 700 वाहनों की पार्किंग भी है।
और अभी जो बरसात में जो हरियाली महोत्सव हुआ था और पौधारोपण का अभियान चला था, तो लगभग 2000 बड़े पौधों का यहाँ रोपण किया गया है ताकि भविष्य में 2-3 साल में वो अच्छे बड़े वृक्ष बन सकें और यहाँ अच्छी हरियाली भी रह सके। तो हमारा उद्देश्य ये है कि जो मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है उसको यहाँ डेवलप किया जाए। जैसा आपने देखा अभी कि मान लीजिए शहर में कोई व्यक्ति है, विजयनगर में है या LIG पर है या कहीं है और वहाँ से उनको यहाँ आना है बस में, तो फिर मेट्रो अगर वो लेकर के आते हैं तो मेट्रो स्टेशन तक आएंगे और मेट्रो से सीधा फुटओवर ब्रिज दिया है जो बस टर्मिनल पे आ जाएंगे। सिटी के अंदर 80 जो है सिटी बसेस के लिए यहाँ पार्किंग दी जा रही है ताकि शहर के किसी भी कोने में व्यक्ति सिटी बस से यहाँ आ जाए, या बस स्टैंड पे आ गए कहीं अपने गंतव्य से दूर से आए कोई, तो यहाँ से उनको अपने घर जाना है तो इनके लिए यहाँ से मेट्रो का भी स्टेशन है। साथ ही साथ जो सिटी बसेस की यहाँ पूरी सुविधा की गई है, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग का भी हम लोग एक यहाँ सिस्टम डेवलप कर रहे हैं ताकि वो चार्जिंग भी हो जाए। पानी के पीने की व्यवस्था, छाया की व्यवस्था, साथ ही साथ जो महिलाएं होती हैं, बच्चे रहते हैं तो फीडिंग कॉर्नर है, महिलाओं के लिए पृथक टॉयलेट हैं, पुरुषों के लिए पृथक टॉयलेट हैं। इसके अलावा जो बसें रात में रुकना है या ड्राइवर कंडक्टर दूर से आते हैं थक जाते हैं तो ड्राइवर कंडक्टर के लिए भी अलग से उनका रेस्ट रूम बनाया गया है, उसमें टॉयलेट दिए गए हैं। कन्वीनियंट शॉप्स जो हैं, इन शॉप्स के अलावा 16 अलग से कन्वीनियंट शॉप्स हैं। ATM भी के लिए भी जगह दी गई है। तो उद्देश्य ये है कि अगर किसी को मेडिकल की ज़रूरत है तो वो सुविधा भी मिल जाए, ATM की ज़रूरत है तो वो मिल जाए, कुछ परचेजिंग करना है तो वो मिल जाए और अच्छे से अपना उनका आवागमन हो सके, ये हमारा उद्देश्य है। संचालन को लेकर क्या प्रॉब्लम? देखिए, संचालन किसी भी सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है और इसके लिए अभी हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि जो अच्छे बस स्टेशंस हैं जैसे अहमदाबाद है या अन्य कोई बड़े स्टेशन है, हैदराबाद है, तो वहाँ हम लोग एक अपनी टीम भेज रहे हैं और जब तक ये बनके पूरा होगा दिसंबर में, हमारा तब तक उद्देश्य है कि हम एक संचालन की एजेंसी भी तब तक ला दें क्योंकि काफ़ी बड़ा है और हम लोगों को ऐसा एक प्रथम दृष्टया जो आकलन है उसमें ये लगता है कि लगभग 80 से 90 लाख रुपए जो है पर मंथ का इस पर एक्सपेंडिचर होगा इसको चलाने में। तो इनकम जनरेशन के सोर्स हैं, आउटडोर मीडिया पॉलिसी है, मीडिया है, बसों से जो लेते हैं, साथ ही साथ जो शॉप्स से जो राशि आएगी उसके माध्यम से रेवेन्यू जनरेट करके इसको हम बहुत अच्छे तरीके से चलाने के बारे में एक मॉडल डेवलप करना है। और इसको जो इंदौर विकास प्राधिकरण का जो संचालक मंडल है, बोर्ड बैठक होगी, उसमें हम लोग इसको प्रस्तुत करेंगे और बोर्ड में जो निर्णय लिया जाएगा उसके अनुरूप इसमें हम लोग कार्रवाई करेंगे।